ایک وہ امام کی قرات والا بھی سوال تھا ان کا. ہاں وہ جو ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اس میں بھی دو جواب ہے. ایک جواب یہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، بعض علماء اس حدیث کو ضعیف نہیں مانتے. آپ کو تفصیل دیکھنا ہے تو علامہ مبارک پوری کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، تحقیق الکلام، پوری ڈیٹیل میں انہوں نے اس روایت کو صحیح ثابت. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ہے، یعنی جہری نماز ہے. اب امام قرات کر رہا ہے تو اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھا تو ایک مقتدی کو پڑھنا پڑے گا، لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ مزاد الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے علاوہ جو کچھ امام پڑھتا ہے مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں تو سورہ فاتحہ کا نام نہیں ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں ایک عام سی بات ہے. لیکن دوسری حدیث میں وضاحت آ گئی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. تو دونوں حدیثوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوگی، ہر جگہ ہوگی سوائے سورہ فاتحہ کے. یہاں پہ امام کی قرات مقتدی کی قرات نہیں مانی جائے گی. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں ہے حرمت علیکم المیتہ، مردہ کوئی جانور جو حلال تھا اگر وہ مر جائے بغیر ذبح کیے آپ اسے نہیں کھا سکتے. لیکن مچھلی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ والحل میتتہ، سمندر کا مردہ جو ہے حلال ہے. ایسے کئی حدیث ہیں جس میں مچھلی مر گئی تو بھی ہم اس کو کھا سکتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے کہ حدیث قرآن ٹکرا گیا؟ ایک منٹ سنیے، حدیث قرآن ٹکرا نہیں رہا. حدیث میں ایک عام سی بات تھی کہ کوئی بھی چیز مر گئی، کوئی بھی جانور مر گیا آپ اسے نہیں کھا سکتے. اب ایکسیپشن کیا آ گیا مچھلی کے لیے، مچھلی مر گئی تو بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو ایسے جو حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، یہ عام سی بات ہے. لیکن اب ایکسیپشن مل رہا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں. نہیں، سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، امام کے پیچھے تو بھی پڑھنا ہے. تو ہم اس کو ایکسیپشن کے طور پہ لیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مقتدی کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. تو وہ حدیث سورہ فاتحہ کے علاوہ کے لیے ہے اور سورہ فاتحہ کے لیے الگ سے ایکسیپشن آئی. شیخ یہ والی حدیث جو ہے یہ آپ کو سوال کا جواب اس حدیث میں مل جائے گا، جو آپ کا سوال ہے اس میں اس حدیث کے اندر مل جائے گا. جی میں نے پڑھی حدیث پڑھی ہے، لیکن میرا ایک سوال یہ، جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، اگر امام کے پیچھے نماز جو لوگ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کے اندر سورہ فاتحہ تو آلریڈی آ گئی نا. کیسے آ گئی؟ امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے کیسے آ گئی؟ جی امام کی سورہ فاتحہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں ہوگی. امام کی جب اقتدا کر رہے ہیں ہم، کیونکہ احادیث کے اندر جو لکھا ہوا الفاظ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الجماعت، یہ نہیں لکھا ہوا ہے. نہیں سن لیجیے اللہ کے نبی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، امام بخاری نے جزء القرات میں نقل کیا ہے، کئی روایتیں کئی سندیں بھی اس کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ زور زور سے قرات کر رہے ہیں. آپ جو پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کہا کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، الا بفاتحہ الکتاب، کیونکہ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بات بھی اس میں ہے اور مقتدی کی بات بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں مقتدی کو یہ حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر امام پڑھ رہا ہے تو تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایکسیپشن دیا سورہ فاتحہ تو تم کو پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. وہی حدیث جو ہے دوسری کا جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ڈیٹیل میں سنن نبی داؤد میں، امام بخاری کی کتاب جزء القرات وغیرہ میں آئی ہے، جس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مقتدی کے لیے کہا ہے، جماعت کے لیے کہا ہے کہ میرے پیچھے تو نماز پڑھ لے تو سورہ فاتحہ تم کو پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. شیخ صاحب اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اس حدیث پہ کسی راوی کا کلام بھی ہے. محمد بن اسحاق کے بارے میں لوگ کلام کرتے ہیں لیکن وہ ثقہ ہے، پوری امت اس کو ثقہ مانتی ہے. حنفیہ بھی ثقہ مانتے ہیں، اہل حدیث بھی ثقہ مانتے ہیں، سب اس کو ثقہ مانتے ہیں. لیکن کبھی مطلب آ جاتا ہے تو بلا وجہ ذرے کر دیتے ہیں. تو ہر کلام کس راوی پہ نہیں ہوتا ہے، بہت کم ایسے راوی ملیں گے جن پہ آپ کو کلام نہ ملے، لیکن ہر کلام معتبر ہوگا. آپ کلام کی بات کریں گے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر ایسا کلام ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے ہم پڑھنا شروع کریں گے. تو کلام کس پر نہیں ملتا ہے، تو ہر کلام معتبر نہیں ہوتا میرے بھائی. اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہ بات آپ یہ اچھے کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر احادیث میں اتنی سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر اتنا زور دیا گیا آپ کے کہنے کے اکارڈنگ، جگہ بھی تو بتائی ہوگی کس جگہ پہ پڑھنا ہے. کس جگہ پڑھنا ہے بھائی؟ آپ کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ہاں کس جگہ پہ پڑھنا ہے، کس ٹائم پہ پڑھنا ہے، یہ بھی تو حدیث میں ہونا چاہیے نا. آپ کی جب مرضی جب آپ پڑھیے کوئی دقت نہیں ہے. سورہ فاتحہ بس آپ کو پڑھنا ہے جب شریعت، ایک منٹ،
शरीयत ने आपको आजाद छोड़ा है तो आप क्यों हदबंदी करेंगे? कब का सवाल आप क्यों कर रहे हैं? ये तो वही बनु इसराइल वाली बात होगी ना कि अल्लाह ताला ने कहा नहीं कि मौलाना, गाय ज़बह अरे करो। शेख नहीं, साहब, आप नहीं शेख आप मेरी साहब, बात सुनो मेरे शेख भाई, साहब एक, अरे शेख साहब आप एक सुन बात लीजिए सुन फिर लीजिए। बोलिएगा, आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। अहादीस के अंदर हर चीज सुन लो पहले, सुन लो जी शेख आप साहब सुन फरमाइए। लीजिए, जब अल्लाह ताला ने कहा कि गाय ज़बह करो, कोई भी गाय ज़बह कर देते, काम बन जाता। लेकिन अब गाय कौन सी होनी चाहिए? फला मतलब इतनी सारी गाय हैं, तो अब वो बार बार सवाल करते गए, अल्लाह ताला पाबंदी लगाते गया। तो असल बात ये है कि जब ये कह दिया गया आपको आज़ादी दी गई है, तो आप क्यों अपने तौर से हदबंदी करना चाहते हैं? जब शरीयत ने इतना मुतालबा किया सूरह फातिहा पढ़ना है, तो आप क्यों चाहते हैं कब पढ़ना है? आप क्यों हदबंदी कर रहे हैं? जब शरीयत ने हमें आज़ाद छोड़ा, हम जब चाहे पढ़ सकते हैं, चाहे इमाम से पहले पढ़ें, इमाम के साथ में पढ़ें, इमाम के बाद में पढ़ें, सकतात में पढ़ें, जहाँ चाहे पढ़ें, हम आज़ाद है उसमें। शरीयत ने जब उसमें कोई लिमिट नहीं बताई है, तो हमारे लिए पूरा मौका है, पूरा मुकम्मल, हम जब चाहे पढ़ेंगे, ये हम उसके लिए पूरे तौर से आज़ाद हैं, जब चाहे पढ़ेंगे। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि शरीयत बताए कि यहाँ पढ़े? जब शरीयत ने जगह नहीं बताई है तो पूरी जगह हमारे लिए है, हम जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे मछली खाना हलाल है, तो शरीयत बताए कि कौन से समंदर की मछली हलाल है? भाई किसी भी समंदर में जाए आप पकड़ लें। अब शरीयत कहती है आप बकरा खाना हलाल है, तो आप कहेंगे कौन सा बकरा है, किस नस्ल का होना चाहिए, किस एरिया का होना चाहिए, किस मुल्क का होना चाहिए, है किस कलर का होना चाहिए? कलर नहीं बताया ना, बकरा खाना हलाल है, कलर तो नहीं बताया, तो आप कहेंगे कलर बताना चाहिए शरीयत को। शरीयत ने नहीं बताया मतलब किसी भी कलर का वो चल जाएगा। तो जब शरीयत ने कोई हदबंदी नहीं लगाई है, कोई कैद नहीं लगाई, तो वो चीज़ आज़ाद है, उसमें जब चाहे पढ़ सकते हैं, जब चाहे खाने का मसला हो, चाहे पढ़ने का मसला हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे सूरह फातिहा के बाद की जो तलावत होती है, इमाम क़िरात करता है ना सूरह फातिहा के अलावा, अब वो जो चाहे पढ़ सकता है, आम नमाजों में जो चाहे पढ़ सकता है। आप कहने नहीं क्या पढ़ेगा वो, हदीस में बताओ क्या क्या पढ़ेगा? जो चाहे पढ़ सकता है, वो आज़ाद है। आप जो है फजर से पहले सुन्नतें पढ़ते हैं ना, आप रकात से पहले और बाद की सुन्नतें पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, प्लस सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरह पढ़ते हैं। आप कहें कौन कौन सी सूरत? आप आज़ाद है, जो चाहे पढ़ें, कोई मसला नहीं। तो जहाँ जहाँ शरीयत ने आपको आज़ाद रखा, आप आज़ादी से उसमें जो चाहे पढ़ेंगे, जितना मुतालबा किया मुतालबा पूरा करेंगे। उस मुतालबे पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, तो हम अपनी तरफ से कुछ पाबंदी नहीं लगाएंगे उसमें। कुछ नहीं कह रहा हूँ शेख साहब, मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी चीज़ का हुक्म है पढ़ने का, क्योंकि आप भी कह रहे हैं पढ़ने के, दूसरी बात अहादीस के अंदर पढ़ने का हुक्म है कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। अब एक चीज़ का हुक्म अगर आ गया है तो उसका हुक्म साथ में ये भी तो होगा। मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह या और भी अइम्मा हैं जो उनका जो कहना है कि ये अहादीस जो है इंसान की अपनी क्या कहते हैं मुफरद यानी इनफरादी नमाज में है कि ये अहादीस जो है यानी तन्हा जब आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ये पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन एक आप बात करें, मैं बात कर रहा हूँ जमात के पीछे नमाज पढ़ने की। जमात उसी का जवाब दिया गया, उसी का जवाब दिया गया है। जो लोग कहते हैं ना कि ये मुनफरिद के लिए है, अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए, उनके पास कोई दलील नहीं है। हमने जो हदीस पेश की है उसमें बाकायदा जमात का जिक्र है, मुक्तदी का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की वाज़े हदीस है कि मुक्तदी पढ़ेगा, वाज़े हदीस है। अरे शेख साहब उसमें अगर तो उसमें ये भी तो लिखा होना चाहिए ना, या इस तरीके की बात होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसी आप अहादीस कोट करिए, या तो फिर या तो आप जो है कोई ऐसा और एक जगह एक मिनट भाई, एक मिनट, एक बात बताइए आप, एक बात बताइए आप, ये जो ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब है, इसका तर्जमा क्या है? नमाज नहीं होती सूरह फातिहा के बगैर। नमाज नहीं होती नहीं है, ला लफ्ज़ जिन्स के लिए आता है, उसके बाद सलाता के ऊपर जबर लगा है, तो नमाज नहीं होती नहीं है तर्जमा होगा उसका। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या तर्जमा करते हैं आप इसका? नहीं माबूद अल्लाह के, नहीं है माबूद कि नहीं है कोई माबूद? नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। हाँ, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। ऐसे ही ला सलाता है, जैसे वहाँ ला इलाहा है वैसे ही यहाँ पर ला सलाता है, तो क्या तर्जमा होगा ला सलाता का? ला सलाता का नहीं होगी नमाज हर उस शख्स की। अरे भाई जैसे वहां पे आप ला इलाहा का तर्जमा कर रहे हैं, नहीं है कोई माबूद ना, तो यहाँ पर ला सलाता का तर्जमा भी वैसे ही कीजिए। तो वही तो मैं तर्जमा कर रहा हूँ, आप तो बताते हैं नहीं होगी, करिए तर्जमा। नहीं होगी नमाज उस शख्स की जिसने अरे कोई क्यों छोड़ दे रहे हैं बीच में आप? ला सलाता में जो जब ला नफी जिन्स के लिए आया है तो नहीं होगी कोई भी नमाज बोलिए ना। जैसे वहां पर बोल रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, तो यहाँ ला सलाता का तर्जमा भी वैसे ही कीजिए ना। नहीं कोई होगी नमाज। हाँ, इसका तर्जमा यहाँ पर ये होगा जी। आप पूरा तर्जमा करके बताइए मुझे। भाई आप ला इलाहा का तर्जमा आपने क्या किया? आप करके बताइए, अहादीस को तर्जमा करके दिखाइए तो आप बताइए। अरे आपने कर दिया तर्जमा अभी ना, ला इलाहा का तर्जमा आपने क्या किया? नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। मोहम्मद रसूलुल्लाह का आपने तर्जमा हमसे कराया, आप कह रहे हैं कि ला सलाता का तर्जमा जो होगा वो जिन्स के एतबार से होगा कि नहीं होगी किसी शख्स की नमाज या नहीं होगी कोई भी नमाज।
हाँ बताना है आपने कोई भी नमाज, तो कोई नमाज में जहरी सिर्री मुक्तदी इमाम सबकी नमाज आ गई ना? हाँ सबकी आ गई। तो बस यही दलील काफी नहीं है, आप अलग से दलील क्यों मांग रहे हैं इसके लिए? मैं अलग से दलील नहीं मांग रहा हूँ, देखिए मैं मान लीजिए कि आज के दौर में कोई बंदा किसी माबूद की इबादत का, देख मैं आपको बताता हूँ, आज के बाद जमाने में कोई बंदा कहे भाई ओशो माबूद नहीं है, इसकी दलील क्या दो, तो हम यही दलील देंगे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, तो उसमें ओशो भी आ गया। तो हमने जब कहा ला सलाता इल्ला बेफातिहतिल किताब, तो इसमें जहरी सिर्री मुक्तदी की, इमाम की, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा नफिल जनाजा इस्तिस्का सब आ गई नमाजें ना। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया नहीं होती कोई भी नमाज बगैर सूरह फातिहा के, तो कोई भी नमाज में जमात की नमाज भी आ गई, मुनफरिद नमाज भी आ गई, मुक्तदी की भी आ गई, इमाम की भी आ गई। लेकिन इसके अंदर ला सलाता का जिक्र भी तो है हजरत शेख साहब, ला जमाता का जिक्र तो नहीं है इसके अंदर। ला सलाता में जमात की नमाज और इनफरादी नमाज दोनों आ गई। जब आप कह रहे कोई भी नमाज नहीं होती है, तो जमात वाली भी आ गई और मुनफरिद की भी आ गई। कोई भी नमाज में जमात की नमाज भी आ गई, मुनफरिद भी आ गई। आप ये क्यों कह रहे हैं किसी मुनफरिद की नमाज मुराद है? भाई ला इलाहा का तर्जमा अगर आप ये कर रहे हैं, कोई भी माबूद नहीं है, तो उसमें लकड़ी पत्थर सब माबूद आ गए ना, जिंदा मुर्दा लकड़ी पत्थर सारे माबूद आ गए। तो ला सलाता नहीं होती कोई भी नमाज, उसमें जहरी नमाजें भी आ गई, सिर्री भी आ गई, जमात वाली भी आ गई, मुक्तदी की भी आ गई। आप उसको सिर्फ मुनफरिद नमाज के लिए क्यों खास कर रहे हैं? जब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कोई भी नमाज नहीं होती, तो उसमें जमात और मुनफरिद दोनों आ गया ना मेरे भाई। फंस गए वापिस जी। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ शेख साहब, एक मिनट बात काटिएगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ शेख साहब जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अगर जो लोग सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे हैं अगर इमाम के पीछे खास तौर से, क्या उनकी नमाज नहीं होती? इसका सीधा जवाब चाहिए भाई। ये अभी फिलहाल जो मैं बात कह रहा हूँ, हदीस का मदलूल क्या है, हदीस किस बात पर दलालत करती है, हदीस किस बात पे दलालत कर रही कि नहीं होती कोई भी नमाज ना। हदीस के अल्फाज तो आपने खुद भी बताया ना, नहीं होती कोई नमाज बगैर सूरह फातिहा के। आप ही ने तो तर्जमा किया था हदीस का ना कि नहीं होती कोई भी नमाज। तो कोई भी नमाज में जमात और मुनफरिद दोनों नमाजें आ गई ना। उम्मत पूरा सेंटेंस या ये जो भी अवाम है इसमें फिर वो उलझी रहेगी, क्योंकि शेख आप उलझे, अवाम को तो समझ में आ रहा है मेरे भाई, आप उलझे हुए। शेख मक्की अल हिजाजी जो क्या कहते हैं वहां पर मक्के, अरे मेरे भाई मक्की हिजाजी, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका, मैं जो सादा सा मैंने पूछा है, सादा सा आप उसका जवाब दे दें। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने कहा ला सलाता इल्ला बेफातिहतिल किताब, नहीं होती कोई भी नमाज बगैर सूरह फातिहा के। अब ये कोई भी नमाज में जमात की भी नमाज आ गई और मुनफरिद भी नमाज आ गई, आई कि नहीं आई? ये बात आप कह रहे हैं, मैं ये बात इस चीज तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं? आपके पास कोई दलील है कि इसमें जमात की नमाज नहीं आई? आप क्यों नहीं कह रहे हैं बात? जी, जब आप कोई भी नमाज बोल रहे हैं, तो फिर आप जमात वाली नमाज क्यों नहीं इसमें शामिल मान रहे हैं? मैं जमात वाली नमाज इसलिए शामिल नहीं मान रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुस्लिम शरीफ के अंदर भी अहादीस है कि ये जो मुस्लिम शरीफ के अंदर अहादीस जो आई है वो पूरी अहादीस आई है। यानी इस हदीस में आप ये मान रहे हैं कि जमात और मुनफरिद दोनों नमाज थी, किसी और हदीस की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि जमात यहाँ मुराद नहीं है? जो मुस्लिम शरीफ के अंदर अहादीस है कि जो शख्स इमाम के पीछे हो तो मुक्तदी की किरात, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है, ऐसा हदीस के अंदर की नहीं है। ये सवाल का जवाब अभी शेख किफायत ने दिया है। ये सवाल का जवाब तो शेख किफायत ने दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ जब एक हदीस, हालांकि हमारे पास इनफरादी दलील है, शेख किफायत ने जहरी नमाज की भी दलील अलग से दे दी, वहां भी दलील मौजूद है। ये भी दलील मौजूद है कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज कोई भी नमाज नहीं होती। उस कोई भी नमाज में जमात की नमाज भी आ गई, इनफरादी नमाज भी आ गई। हमारी दलील बिल्कुल वाज़ेह थी, आपके पास उसका कोई जवाब नहीं। शेख किफायत ने जहरी नमाज की भी दलील दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरी नमाज के बारे में फरमा दिया कि मेरे पीछे सूरह फातिहा के अलावा कुछ मत पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अगर मान भी लिया जाए कि मुक्तदी की क़िरात, इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात होती है, तो ये सूरह फातिहा के अलावा दूसरे क़िरात के बारे में, सूरह फातिहा के बारे में नहीं है। सूरह फातिहा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह है कि सूरह फातिहा मुक्तदी को पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती, मतलब ना मुक्तदी की होती है ना इमाम की होती है। अलग से भी हदीस मिल गई। अब इतनी दलीलें मिलने के बावजूद भी आप क्यों नहीं मान रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो ये बात आप कह रहे हैं मुक्तदी की भी नहीं होती और इमाम की भी नहीं होती, आप ये बात जो कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ला सलाता मतलब कोई भी नमाज नहीं होती, तो मुक्तदी की भी नमाज हो गई, इमाम की भी नमाज उसमें हो गई ना मेरे भाई। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, तर्जमा भी आपने खुद किया, इसलिए मैंने पहले आपसे तर्जमा कराया। एक मिनट शेख, अगर किसी शख्स ने, अगर यही आपने सूरह फातिहा की बात से मैं ले रहा हूँ, अगर कोई शख्स जो है नमाज के आखिर में आके पहुंचा, उसने सूरह फातिहा उसको नहीं पढ़ी या उसको मौका नहीं मिला सूरह फातिहा ने, तो क्या उसकी रकात मानी जाएगी फिर?
रुकू में पहुंचा, उसको तीनों तस्बीह मिल गई रुकू की। इख्तिलाफी मसला है रुकू में रकात मिलने के बारे में। नहीं तो इसके अंदर भी तो सूरह फातिहा की बात आ जाएगी ना इसके अंदर। भाई इख्तिलाफी मसला है वो। मतलब जवाब क्या कहते हैं, एक बात बताइए आप, एक आदमी रुकू में पहुंचा, उसने कयाम नहीं किया, कयाम वाजिब है कि नहीं वाजिब है? अब लीजिए, वाजिब बोलिए। है क्या? और रुकू में पहुंचा, इमाम के साथ रुकू में चला गया, कयाम नहीं किया, तो उसकी नमाज होगी कि नहीं, रकात बनी जाएगी कि नहीं? लेकिन कयाम की मिकदार भी तो तय की गई है, ऐसा थोड़ी नहीं कि वो भाई एक आदमी रुकू में पहुंचा, उसने कयाम नहीं किया, सीधा रुकू में इमाम के साथ चला गया, उसकी रकात होगी कि नहीं? अगर उसकी एक शख्स अगर आया रुकू के, मतलब इमाम साहब रुकू में थे, वो आया, उसने नियत बांधी, और अगर इमाम साहब रुकू में थे तो नियत क्यों बांधेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तुम इमाम को पाओ तो जिस हालत में पाओ उस हालत में चले जाओ। हाथ क्यों बांधेगा वो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ चला जाएगा। बगैर नमाज में दाखिल हुए, अब तकबीर तहरीम में करेगा, रुकू में चला जाएगा, बगैर नमाज में दाखिल हुए, कौन सी बात हुई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो रुकू नमाज में ही तो दाखिल हो रहा है, रुकू करके, और किस चीज में दाखिल हो रहा है? वही तो नियत तकबीर करना तहरीमा होगा से दाखिल हो जाता है ना, हरा तकबीर तहरीमा से दाखिल हो जाता है। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूँ, वही और तो रुकू नियत में चला करना गया होगा। जी, तो रुकू में चला गया तो कयाम तो नहीं किया ना, तो कहाँ हो गया उसका, कहाँ उसके वो हुआ? अगर उसको 3 तस्बीह मिल गई तो उसकी रकात उसकी पूरी हो जाएगी। वो तो कयाम नहीं वाजिब था उस पर? कयाम वाजिब था, लेकिन ये तो कयाम छोड़ दिया तो कैसे रकात हो गई? मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये बहरहाल वो बताओ। आपको मैंने जवाब दे दिया। वो सूरह फातिहा के बारे में भी उलमा ने यही कहा कि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती, तो अगर आदमी को सूरह फातिहा नहीं मिली तो उसकी नमाज नहीं होगी, डायरेक्ट रुकू में आए तो। और भाई भी ये बताओ कि कोई, हाँ ये बताओ कि कोई शख्स इस्लाम कबूल करता है, उसको सूरतुल फातिहा पढ़ने नहीं आ रहा है, तो क्या उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? तो एक क्या होता है, एक होता है नॉर्मल हालात, एक होते हैं नॉर्मल हालात, एक होता है इस्तिस्नाई हालात। वो जो नया इस्लाम कबूल किया है ना, उसकी वो अभी इस्तिस्नाई हालत है, सिचुएशन अलग है। तो यहाँ पे अभी नॉर्मल के ताल्लुक से हम बात समझेंगे कि नॉर्मल के हिसाब से क्या कायदा है। अब जो दलाइल है, आप जो बोल रहे हैं ना, ये सिचुएशन से अब आप इस्तिस्ना से मेन को नहीं फैसला कर सकते, मतलब एक्सेप्शन को लेकर के आप मेन का फैसला नहीं कर सकते। आपको पहले मेन तो समझना होगा ना, मेन क्या है। तो मेन बात जो दलाइल आपके सामने आए, आप क्या करें, एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ये वीडियो को, क्योंकि आपने जो बात सवाल रिपीट किया ना, वो पीछे जवाब आ चुका था, तो थोड़ा पीछे आके एक बार फिर देख लें इंशाल्लाह। और मसला यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हमारा मसला यही है कि क्या चीज साबित मिलती है वो हम कबूल करेंगे। हम बंधे हुए नहीं है, कोई एक शख्सियत से बंधे हुए नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने कलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, आपने भी मैंने भी, और जो दलाइल की रोशनी में साबित मिलेगा वो बात हम सबको मानना, यही तरीका है हमारा। तो यानी तकलीद का मौजू जो हम बात कर रहे हैं ना, वो इस मसले से जरा ऊपर वाला मौजू है कि जो भी मसाइल में साबित शुदा बात मिलेगी हम सब कबूल करेंगे, यही बात है। जी शेख शाबान, आप भी बताएं जी। इन्होंने एक सख्त बात कही है, जो गुफ्तगू हो रही थी, बहुत सख्त बात कही है कि हदीस में ठीक है, ये बात है कि सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और जो है मुक्तदी भी पढ़ेगा, लेकिन वो कब पढ़ेगा ये भी होना चाहिए था। ये क्यों नहीं है? ये अल्लाह और रसूल पर फैसला करना है और अल्लाह और रसूल को हुक्म देना है कि ये तो है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, ये तो है कि सूरह फातिहा पढ़ना होगा, मुक्तदी को भी पढ़ना होगा, इमाम को भी पढ़ना होगा, लेकिन कब पढ़ना है ये क्यों नहीं है? ये भी होना चाहिए। ये हुक्म लगाना है अल्लाह और रसूल पे, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से आगे मत बढ़ो। तो ये बहुत खतरनाक बात है, इस तरह के कलिमात से बचना चाहिए, ये आपको नसीहत है। जी शेख बताइए। शेख एक मिनट, अहादीस के अंदर जो अल्फाज हैं, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, आपने मिसाल वहां पर दी थी कि आप वसल्लम, अबू दाऊद शरीफ की आपने शायद हदीस कोट की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो पीछे सहाबा लोग, चंद सहाबा आप वसल्लम के पीछे तिलावत कर रहे थे नमाज के दौरान। तो जब अहादीस के अंदर एक अल्फाज है, तो किसी सहाबी या किसी और सहाबिया या किसी से ये भी तो साबित होगा ना कि वो किस सूरह फातिहा अगर इमाम के पीछे पढ़ते थे तो किस मौके से पढ़ते थे, किस जगह पे पढ़ते थे, क्योंकि भाई जब जितना मौजूद है उतना ही तो बयान होगा। क्योंकि अच्छा एक बात मुझे बताइए दरियावादी भाई, एक मिनट, मैं एक चीज असल में एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये जो आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आपके सामने दलीलों से साबित कर दिया जाए कि सूरह फातिहा पढ़ना मुक्तदी के लिए साबित है, मशरू है, तो आप तस्लीम कर लेंगे? शेख आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी, आप दोबारा से। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर दलीलों से हम साबित कर दें आपके सामने सूरह फातिहा पढ़ने की मशरूइयत की, सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए इमाम के पीछे, तो आप मान लेंगे? हाँ बताइए। मुतमईन क्यों आप मुकल्लिद नहीं है? नहीं कैसे मान लेंगे आप तो मुकल्लिद है ना,
آپ تو مقلد ہیں نا، تو آپ کیسے مان لیں گے؟ ایسے تو آپ لوگ بھی تقلید کرتے ہیں، اس میں اس بات پہ ارے بھائی میں آپ میری بات چھوڑیے، ہم لوگ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ تو مقلد ہیں نا، تو اگر دلیل سے ثابت ہو گیا تو دلیل مان لیں گے، تو مقلد نہیں رہ جائیں گے نا آپ، تو کیسے مان لیں گے؟ آپ تو حنفی ہیں، تو دلیل اگر حنفی آدمی کے سامنے دلیل سے اگر کوئی بات رکھ دی جائے تو وہ مسلک چھوڑ دے گا اپنا، مان لے گا دلیل سے بات، ہاں ایک دم اطمینان بخش جواب ہوگا، تقلید چھوڑ دیں گے آپ۔ اگر کسی فرعی مسئلے میں اگر آپ کے سامنے دلیل سے ایک بات ثابت ہو جائے تو آپ امام کا قول چھوڑ کر کے دلیل مان لیں گے؟ ٹھیک ہے مان لیں گے، اطمینان بخش خوش آمدید بھائی، ہم یہی تو ہم ماشاءاللہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے تقلید سے توبہ کر لی، اہل حدیثیت قبول کر لی، اسی چیز کا نام اہل حدیثیت ہے۔ ہم یہی رویہ، فرعی مسئلے تو اپنی بحثیں چلتی رہیں گی، تحقیق چلتی رہیں گی، اصل تو یہی چیز ہے جس کی ہم دعوت دے رہے تھے آپ کو، کہ کسی مسئلے میں اگر دلیل سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو امام کا قول چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اگر آپ نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے نا تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے تقلید چھوڑ دی، آپ نے تقلید سے توبہ کر کے اہل حدیثیت قبول کر لی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسائل پر تحقیق ہوتی رہے گی، ضروری نہیں کہ ایک اسٹریم میں سارے دلائل آ جائے، ساری باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں، اصولی بات آپ نے تسلیم کر لی نا، مجھے بہت خوشی ہوئی، بارک اللہ فیکم، خوش آمدید، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ ہم یہی جب سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب دلیلوں سے چیزیں ثابت ہو جائے تو امام کا قول چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر یہ اصول آپ نے مان لیا، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو دلیل سے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ نہ مانیں، لیکن یہ اصول آپ نے مان لیا نا، یہ اصل ہماری کامیابی ہے۔ بہت بہت مبارکباد، جزاکم اللہ خیرہ، خوش آمدید، بارک اللہ فیکم۔ شیخ ایک منٹ ابھی کیا کرو نا، اس کو ایشو نہ بننے دو میرے بھائی، مطلب ایسا کبھی بات کرنے میں ایسا ہوتا ہے نا، آدمی بولے کہ نہیں ابھی، اب ویسا مت ہونے دو، آپ کو جو بات کہی گئی صحیح لگی، آپ نے اس لیے ہاں بولے نا، تو اب اس میں آپ یو ٹرن مت مارو کسی وجہ سے۔ ہاں جزاکم اللہ خیر، شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ، شیخ سرفراز فیضی حفظہ اللہ، آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر۔ آپ لوگوں نے اس اعتراض کا بہت اچھی طریقے سے جواب دیا کہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے، اور جو بھائی کو بھی آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل، اس کا اگر اوریجنل چینل جاننا چاہتے ہیں، وہ لنک میں دیے گئے، ڈسکرپشن میں دیے گئے، اور جو بھائی بھی آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل کا لنک جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم نے اس چینل کا لنک ڈال دیا گیا ہے، آپ وہاں سے اس اوریجنل چینل کو آئی پلس ٹی وی اختلاف کے حل کو جوائن کر سکتے ہیں۔